हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी, एमएससी पीएचडी इन बायोलॉजी। और आज मैं आप लोगों के सामने यूनिट टेस्ट लेके आया हूं, जो कि यूनिट नंबर 1 डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम में से है। और टेस्ट 1, 2 ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। तो आज की हमारी जो टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 3 है। इसमें 20 MCQ है। मैं आपको 1 by 1 MCQ एक्सप्लेन करूँगा। यूलोथ्रिक्स कैन बी डिस्क्राइब एज non-motile colonial alga lacking zoospore, filamentous alga lacking flagellated reproductive stages, membrane alga producing zoospore, filamentous alga with flagellated reproductive stage. Eulothrix can be best described, I think so, flagellated तो होना ही चाहिए, तो ए और सी तो ऑप्शन नहीं है। फिलामेंटस अलगा लेकिंग फ्लैजेलेटेड, नो, फिलामेंटस अलगा विथ फ्लैजेलेटेड। तो दोनों में फ्लैजेला वर्ड है, लेकिन फ्लैजेला होना चाहिए। तो आई थिंक आंसर इज डी, यस। क्वेश्चन नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा is an advanced features because it shows physiological difference sex organ, different size of motile sex organ, same size of motile sex organ, morphologically different sex organ. So I think so physiological differentiated sex organ will be the correct answer. Let's see. Yes, correct answer है. Research student collect certain alga and found that its cell contain both chlorophyll A, B, C and chlorophyll D as well as phycoerythrin. The alga are, तो देखो जनरली क्लोरोफिल A, B तो कॉमनली सभी में पाए जाते हैं, कभी कभी C भी पाया जाता है, लेकिन ये बात कर रहे हैं फाइकोइरिथ्रिन। सो फाइको मीन्स फाइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ algae. सो फाइको इज अ algae. Erythrin is a red color like RBC, erythrocyte. So it's a red algae, and scientific name of red algae is a Rhodophyceae. So I would say answer is A. Yes, Chlorophyceae is a green algae and Phaeophyceae is the brown algae. Next one, bryophytes are depend on water because water is essential for fertilization of their homosporous nature. Second, water is essential for their vegetative propagation. Sperm can easily reach up to the egg in the archegonium. So this will be correct answer. Sperm can easily reach to egg of archegonium. Archegonium has to remain filled with water for fertilization. No. तो sperm easily travel होते हैं, तो C आंसर होगा. Yes. Which one pair of example will correctly represent group spermatophyte according to the one of the scheme of classifying plant? So here I would say Rhizopus triticum, Ginkgo pisum, Acacia sugarcane and Pinus and Cycas. I think so here which one of the example correctly represent group spermatophyte, no? So I think so Ginkgo, and it's a Ginkgo, it's a Ginkgo biloba, and Pisum. Ginkgo and Pisum will be correct answer. B. Let's see. Yes, B is the correct answer. Cycas has 2 cotyledon but not included in angiosperm because साइकस के अंदर 2 कोटिलोडोन होते हैं, लेकिन वो एंजियोस्पर्म में इंक्लूड नहीं होते हैं. क्यों? नेकेड ओव्यूल, सीम लाइक मोनोकोट, सिसिनेट टेक्सिस, कंपाउंड लीव्स. So I would say it's because of naked seed. Cycas is actually belongs to the gymnosperm. और ये कह रहे हैं कि साइकस के अंदर 2 कोटिलोडोन है, फिर भी उनको जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में क्यों इंक्लूड नहीं किया गया? क्योंकि साइकस के अंदर बेसिकली नेकेड सीड होता है, सीड के ऊपर बेसिकली कवर नहीं होते, इसके लिए उनको जिम्नोस्पर्म में इंक्लूड किया, एंजियोस्पर्म में नहीं. सो यस, करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्लेस अ प्लांट हैविंग वॉस्कुलर टिश्यू लैकिंग सीड? अब आप ये देखो, total number of plants divisions are like algae, bryophytes, pteridophytes,
एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। अभी इन सभी में अगर हम ये देखें तो अल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट ये तीनों कौन है? ये है क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, तो ये हमें क्या बोल रहे हैं? वॉस्कुलर क्रिप्टोगैम्स ना, वॉस्कुलर टिश्यू। सो जनरली अल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट इन तीनों में से जाइलम फ्लोएम सिर्फ टेरिडोफाइट्स में ही पाए जाते हैं, तो इसका आंसर भी टेरिडोफाइट ही होगा। यस, सो अल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट। यस। Which one of the following pair of plants are not seed producer? Not seed producer, हाँ? तो अगर हम ये एक्चुअली ये क्वेश्चन देखें तो मैं आपको एक क्लियरली आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ना 3 आंसर दिए हुए हैं। मैंने ये एक्चुअली ये पहले ये टेस्ट सोल्व किया हुआ था कभी, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका आंसर फर्न एंड फ्यूनेरिया है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखो तो ये क्या पूछ रहे हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ प्लांट आर नॉट सीड प्रोड्यूसर। तो फुकस और क्लेमिडोमोनास ये भी सीड प्रोड्यूसर नहीं है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। फ्यूकस इज़ अ वन टाइप ऑफ अ ब्राउन एल्गी, क्लेमिडोमोनास इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एल्गी। यस, तो ये भी एल्गी भी स्पोर ये स्पोर प्रोड्यूसिंग होते हैं, सीड प्रोड्यूसिंग नहीं होते। तो ए आंसर भी है। बी में देखिए पुसिनिया, पुनिंका एंड पाइनस, पाइनस जिम्नोस्पर्म है, और फ्यूनेरिया एंड फ्यूकस। तो आखिरी में देखिए फ्यूनेरिया एंड फ्यूकस, तो फ्यूकस भी एल्गी है, फ्यूनेरिया भी ब्रायोफाइट्स में आते हैं। तो ये जो कैटेगरी है फर्न और फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया एंड फ्यूकस एंड क्लेमिडोन, ये तीनों के तीनों एक्चुअली आंसर है, लेकिन इस ऐप में सिर्फ इसी को ही आंसर दिया हुआ है। ठीक है, या तो अगर ये कहते हैं कि इनमें से कौन सा नॉन सीड प्रोड्यूसर है तो हम पाइनस पुनिका कहते हैं। तो ठीक है, इन्होंने ऐप में ये आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स कॉम्प्राइजेस। सो ब्रायोफाइट्स में क्या होता है? स्पोरोफाइट ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, डोमिनेंट फेज ऑफ स्पोरोफाइट विच इज पैरासाइटिक, डोमिनेंट फेज ऑफ गेमेटोफाइट विच प्रोड्यूस स्पोर, स्मॉल स्पोरोफाइट फेज जनरली पैरासाइटिक ऑन गेमेटोफाइट। ब्रायोफाइट्स कॉम्प्राइजेस, तो ब्रायोफाइट्स में ऐसा होता है स्मॉल स्पोरोफाइट फेज जनरली पैरासाइटिक ऑन गेमेटोफाइट। करेक्ट है, तो डी जो आंसर है वो सही है, मैच करता हुआ इससे। क्वेश्चन नंबर 10, लार्जेस्ट स्पर्म इन द प्लांट वर्ल्ड आर फाउंड इन। सो लार्जेस्ट स्पर्म किसके अंदर पाया जाता है? सो लार्जेस्ट स्पर्म पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो प्लांट में आता है वो होता है साइकस में। सो आई वुड से साइकस इज द करेक्ट आंसर। यस। क्वेश्चन नंबर 11, द एंथेरोजोइड्स ऑफ फ्यूनेरिया आर। द एंथेरोजोइड्स ऑफ फ्यूनेरिया आर, दे आर एसिलेटेड, बायफ्लैजिलेटेड, मल्टीफ्लैजिलेटेड, मोनोफ्लैजिलेटेड। तो जो एंथेरोजोइड्स होते हैं ना फ्यूनेरिया में, इनके अंदर 2 फ्लैजिला होते हैं, वो बायफ्लैजिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस सीड बट नॉट फ्लावर। सीड प्रोड्यूस करते हैं लेकिन फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो वो कौन हो गए? जिम्नोस्पर्म हो गए। सो मेज इज अ मोनोकोटिलोन विच इज एंजियोस्पर्म, मिंट इज ऑल्सो एंजियोस्पर्म, पीपल प्लांट इज ऑल्सो एंजियोस्पर्म, पाइनस इज जिम्नोस्पर्म। सो डी इज करेक्ट आंसर। Question number 13, which one of the following is true about bryophytes? They possess archegonia, they contain chloroplast, they are thalloid and all of above. तो आंसर हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे all of above। एक्चुअली यहाँ पे देखिए सी जो है दे आर थैलोइड, तो ब्रायोफाइट्स में कुछ वेजिटेटिव प्लांट भी होते हैं, कुछ थैलोइड भी होते हैं। तो अगर वहाँ पे अगर ऐसे लिखते हैं कि सम आर थैलोइड, तो वो भी ऑप्शन सही होता। उनके अंदर आर्चियोगोनिया है, सेक्सुअल ऑर्गन, उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है बिकॉज प्लांट है, उनमें से कुछ थैलोइड प्लांट भी है, और ऑल ऑफ अबव आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, एंजियोस्पर्म हैव डोमिनेटेड द लैंड फ्लोरा प्राइमरीली बिकॉज ऑफ देयर। तो एंजियोस्पर्म के अंदर क्या है ऐसी प्रॉपर्टी जो बेसिकली पावरफुल है? सो पावर ऑफ अडेप्टेशन टू डाइवर्स हैबिटेट, ये तो 90% करेक्ट लग रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ सीड, लार्ज नंबर ऑफ सीड, जरूरी नहीं कि सभी प्लांट लार्ज नंबर ऑफ सीड ही प्रोड्यूस करेंगे। अगर आप मैंगो देखो, सो मैंगो एंजियोस्पर्म है और उसमें से हर फ्रूट में एक ही सीड निकलता है, तो लार्ज नंबर ऑफ ये गलत है। नेचर ऑफ सम पॉलिनेशन,
पोलिनेशन ये ठीक है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं कि पोलिनेशन के कारण ही एंजियोस्पर्म इतने पावरफुल प्लांट है। डोमेस्टिकेशन बाय मैन नहीं, मतलब मैन उस प्लांट को लगा सकते हैं, तो ये ज़रूरी भी नहीं है। आजकल हम अलगी भी ग्रो करते हैं, लाइक क्लोरेला अलगी, ठीक है, तो वो भी तो डोमेस्टिकेशन बाय मैन है। इसका आंसर ए हो जाएगा। यस। क्वेश्चन 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइकस इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। इट डज नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज फीमेल फ्लावर, इट हैज़ सर्सिनेट वेनेशन, इट्स जाइलम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ अ जाइलम वेसल। ये वाला सही लग रहा है मुझे। इट्स रूट कंटेन सम ब्लू ग्रीन एल्गी। हमें इनकरेक्ट ढूंढना है ना। साइकस के मतलब इट डज नॉट हैव वेल ऑर्गेनाइज फीमेल फ्लावर, करेक्ट है ये तो, मतलब उनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज फीमेल फ्लावर नहीं होता है। इट हैज़ अ सर्सिनेट वेनेशन, उनके लीफ में सर्सिनेट वेनेशन ही पाया जाता है साइकस में। एंड इट जाइलम इज मेनली कंपोज्ड ऑफ जाइलम वेसल, ये गलत है सेंटेंस। इट्स रूट कंटेन्स सम ब्लू ग्रीन एल्गी, उनके रूट पे कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सिंग के तौर पे काम करते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो सी ऑप्शन है, इट्स जाइलम मेनली कंपोज्ड ऑफ जाइलम वेसल, ये रॉन्ग है। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विथ एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म, विथ एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म। तो हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो एंजियोस्पर्म में कंपलसरी है और दूसरों में वो नहीं पाई जाती है, ठीक है। आवर क्वेश्चन इज बेसिकली मीन दैट which among the following feature is only present in angiosperm not in other, so exception in angiosperm. Presence of vessels तो जिम्नोस्पर्म में भी पाई जाती है। डबल फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, ना ही ब्रायोफाइट्स अलगी किस में होता है। सेकेंडरी ग्रोथ इज प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म बोथ, ये दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। हमें सिर्फ ये देखना है कि एंजियोस्पर्म में एक्सेप्शन कौन है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, सभी प्लांट ऑटोट्रोपिक है, सो आई वुड से बी, डबल फर्टिलाइजेशन इज करेक्ट आंसर। यस। द लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट मेल एंड फीमेल गैमेट आर लार्जेस्ट प्लांट आर फाउंड अमंग, तो ये किसके अंदर पाए जाते हैं? तो एक्चुअली ये जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, बिकॉज सबसे बड़ा जो टॉलेस्ट प्लांट है वो जिम्नोस्पर्म में आता है, सिक्यूआ। So gymnosperm is correct answer. In fern, meiosis occur when? Spore germination, gametes are formed, spores are formed, antheridia and archegonia are formed. In fern, meiosis occur in, तो meiosis फर्न में तब होता है जब स्पोर्स फॉर्म होते हैं, जर्मिनेट होते नहीं, स्पोर फॉर्म होते हैं। तो हम सी की तरफ जाएंगे। यस। क्वेश्चन नंबर 19, कोलुमेला इज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फाउंड इन द स्पोरेंजियम ऑफ, सो यूलोथ्रिक्स, राइजोपस, स्पायरोगायरा, नन ऑफ अबाउ। सो आई थिंक सो कोलुमेला का आंसर इसका हो जाएगा राइजोपस। कोलुमेला इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर फाउंड इन द राइजोपस इन द स्पोरेंजियम। देखते हैं। यस करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। डाइकोटोमोनस ब्रांचिंग इज फाउंड इन, सो ये जो होते हैं वो लिवर वॉट्स में पाए जाते हैं। आई थिंक डाइकोटोमस ब्रांचिंग इज फाउंड इन, सो दे आर जनरली फाउंड इन दी liver warts, fern, funaria, liverworts, merchantia. I'm confused between the merchantia and liverworts, but I would say really I'm in confusion. Dichotomous branching is found in, so क्या होते हैं ये liverworts, merchantia में? लिवरवॉट्स सिलेक्ट करते हैं हम। यस करेक्ट। सो गाइस ये है हमारा रिजल्ट, हमारा स्कोर कार्ड। हमने 20 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हमने 20 में से 20 आंसर सही दिए, एक भी आंसर हमने रॉन्ग नहीं दिया। और टोटल टाइम हमें लगा 14 मिनट और 9 सेकंड। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टेस्ट। अगर आप ऐसे ही हमारे
यूट्यूब चैनल पे टेस्ट सीरीज़ देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और प्लीज़ अगर आप अपने दूसरे बायोलॉजी के फ्रेंड्स को हेल्प करना चाहते हो इस वीडियो के थ्रू तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हैव अ गुड डे।